Hello everyone. Friends, in this video lecture, we shall discuss an important topic that is the emergency provisions of the Indian Constitution. This is very important from your examination point of view as well as from your knowledge point of view. I shall use English, that is both Hindi and English, so that you would understand the topic very easily. Friends, let us start. Sorry. Friends, when it comes to the emergency provisions, हमारी कंट्री में एबनॉर्मल सिचुएशन से डील करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस रखे गए हैं और इन प्रोविजंस को इमरजेंसी प्रोविजंस कहते हैं एंड इट इज दीज प्रोविजंस दैट एनेबल द सेंट्रल गवर्नमेंट to meet any abnormal situation effectively. In simple words, अगर हमारी कंट्री में कभी एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस राइज हो जाए, अगर हमारी कंट्री में कभी एबनॉर्मल सिचुएशन राइज हो जाए, उस वक्त इमरजेंसी प्रोविजंस का उपयोग करके यानी कि बाय डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसीज the central government can meet any abnormal circumstances effectively. और जब ये इमरजेंसी प्रोविजंस लागू किए जाते हैं, चाहे नेशनल इमरजेंसी हो, स्टेट इमरजेंसी हो या चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, उस वक्त हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो काफ़ी हद तक यूनिटरी सिस्टम में चेंज होता है. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उस वक्त इमरजेंसी प्रोविजंस को इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया है सो दैट इट कुड सेफगार्ड द इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन. क्योंकि हर कंट्री में एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की वजह से कंट्री की सॉवरेनिटी, कंट्री की यूनिटी, कंट्री की सिक्योरिटी पे असर पड़ सकता है. इन द सेम वे इन इंडिया, टू डील with the abnormal situations, to provide safeguard to the integrity, sovereignty, unity and security of the nation, the central government makes the use of these provisions to meet any abnormal situation effectively. Friends, when it comes to the constitution, there is part 18th of the constitution where these emergency provisions lies. Part 18th of the constitution is very important. Why it's important? Because it's the part where the emergency provisions lies. Article 352 to 360 are the articles that deal with the emergencies, that deals with the, ये हम आगे देखेंगे. आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है part 18th of the constitution deals with the emergency provisions and the articles that are related with the emergency provisions starts from article 352 to 360. Now, when it comes to the types of emergencies, there are three types of emergencies. One is national emergency, and the article that deals with this type of emergency is article 352, and this emergency is declared due to war, external aggression and armed rebellion. In simple words, national emergency is being declared on the basis of war, on the basis of external aggression, on the basis of armed rebellion. But
The second type is president's rule. For this type of democracy हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड इमरजेंसी नहीं इस्तेमाल किया गया है इसके लिए। समटाइम्स इसे स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, एंड इट्स आर्टिकल 356 दैट डील्स विद दिस टाइप ऑफ इमरजेंसी। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट इमरजेंसी के बदले क्या है, वहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल दिया गया है। क्वेश्चन आ सकता है ना, इस रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि इस टाइप ऑफ इमरजेंसी के लिए कौन से अल्फाज दे रखे हैं, कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया है। वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी नहीं है, बल्कि वहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल है। अब जो तीसरी इमरजेंसी है, थर्ड टाइप ऑफ इमरजेंसी, वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में आती है। अब ये फाइनेंशियल इमरजेंसी उस वक्त ऑकर होती है जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ ए कंट्री पे कोई थ्रेट आ पड़ता है ना। यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेट टू द फाइनेंशियल stability or credit of India. Okay, let us see national emergency in detail. The first thing is grounds of declaration, यानी कि किन ग्राउंड्स पे नेशनल इमरजेंसी को हम डिक्लेयर कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी विद इन द the president can declare a national emergency when the security of India or part of it is threatened by war, external aggression or armed rebellion. सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है the power lies in the hands of president. The power lies in the hands of president. president के हाथ में पावर है, वो इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है, चाहे तो सारी इंडिया में डिक्लेयर कर सकता है, चाहे तो किसी हिस्से में डिक्लेयर कर सकता है ना, उसी हिस्से में डिक्लेयर कर सकता है विच इज़ थ्रेटनड, है ना, जिसकी सिक्योरिटी अंडर थ्रेट है बाय वर्चू ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्मड रिबेलियन। समझ आ रही है। और ये नहीं कि अभी जंग हुई है तो अभी इमरजेंसी को लागू करना है ना। अगर प्रेसिडेंट को लगा कि अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई है, नहीं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ इमिनेंट डेंजर, अभी वार नहीं हुई, अभी एक्सटर्नल एग्रेशन नहीं हुआ है, अभी आर्मड रिबेलियन नहीं हुई है, लेकिन एक्चुअल ऑकरेंस से पहले भी प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है इमरजेंसी को, लेकिन उसमें प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है, वो सेटिस्फाई होना चाहिए, नो देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ इमिनेंट डेंजर। ठीक है। अब तीसरी बात क्या है, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज। When it comes to national emergency, there are two types of emergencies. One is external emergency, and the second one is internal emergency. यानी कि नेशनल इमरजेंसी के दो हिस्से हैं, वन इज एक्सटर्नल इमरजेंसी और दूसरी क्या है, इंटरनल इमरजेंसी। जब इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, उस वक्त उसको हम एक्सटर्नल इमरजेंसी का नाम देते हैं। और जब आर्मड रिबेलियन के बेसिस पे इमरजेंसी को लागू किया जाता है, उस वक्त हम उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, इंटरनल इमरजेंसी। अब आपने क्या देखा है, एक सेकेंड, अब आपने देखा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज, है ना। नेशनल इमरजेंसी के दो हिस्से हैं, एक एक्सटर्नल, दूसरा है इंटरनल। एक्सटर्नल इमरजेंसी उस वक्त होती है जब वार या एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे इमरजेंसी को लागू किया जाता है, और इंटरनल इमरजेंसी उस वक्त लागू की जाती है जब आर्मड रिबेलियन या इंटरनल थ्रेट के बेसिस पे इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है। ओके, एंड थर्ड थिंग दैट यू नीड टू नो दैट, अब ये जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है जो प्रेसिडेंट की तरफ से जारी की जाती है, मैंने पहले ही बताया, अगर
सिक्योरिटी अंडर थ्रेट है ईस्ट इंडिया में बाय वर्च्यू ऑफ वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन, तो वहाँ पे लागू की जा सकती है। नॉर्दर्न इंडिया में एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हो रही है तो वहाँ पे इमरजेंसी को लागू किया जा सकता है। साउदर्न इंडिया में एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस है सो वहाँ पे इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि सारी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 enabled the president to limit the operation of national emergency to a specified part of India। अब ये पावर कहाँ से आता है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 enables the president to limit the operation of national emergency to a specified part of India। यानी कि प्रेसिडेंट को चाहे कि इमरजेंसी को उसी हिस्से तक लिमिट रखे, उसी पार्ट तक लिमिट रखे जहाँ पर एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस राइज हो गए हैं बाय वर्च्यू ऑफ वॉर, बाय वर्च्यू ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, बाय वर्च्यू ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। अब देखो यहाँ पे एक अहम बात है कि जो आर्म्ड रिबेलियन हम यहाँ पे बात हो रही है आर्म्ड रिबेलियन की, ऑरिजिनली यहाँ पे बेटा आर्म्ड रिबेलियन नहीं था। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस थी। द वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस वाज देयर इंस्टेड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। लेकिन ये एक वैग कॉन्सेप्ट था, समझ में नहीं आ रहा था अच्छे से, इसकी कनोटेशन काफ़ी थी, है ना, वाइडर मीनिंग थी इसकी। सो 44th अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट से क्या हो बेटा? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 जब हुई उसकी वजह से ये जो आर्म्ड रिबेलियन है इसको सब्स्टिट्यूट किया गया है फॉर इंटरनल डिस्टर्बेंस। इट मीन्स internal disturbance has been replaced with a new phrase that is armed rebellion. Now, no government is allowed to declare national emergency on the basis of internal disturbance। यानी कि अब इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे अब कोई भी गवर्नमेंट इमरजेंसी को डिक्लेयर नहीं कर सकता। नेशनल इमरजेंसी कैन नॉट बी डिक्लेयर ऑन द इंटरनल डिस्टर्बेंस। क्यों? Because now the phrase internal disturbance has been replaced with a new phrase that is armed rebellion। क्यों रिप्लेस हुई? क्या वजूहत थे? Actually the reasons were that it was too vague, it had wider connotation, ठीक है, that is why a new phrase that is armed rebellion that has substituted the old phrase that is internal disturbance। अब कोई भी गवर्नमेंट इसके बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर नहीं कर सकता है, जिस तरह 1975 में इंदिरा गांधी जी ने किया था, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो 44th अमेंडमेंट एक्ट हुई इसमें ये भी कहा गया कि ऐसा नहीं कि मेयर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट विल डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। नहीं, प्रेसिडेंट जो है इट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर डिक्लेरेशन और ओनली आफ्टर रिसीविंग ए रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट मेयरली ऑन द एडवाइस। सिंपल वर्ड्स में, जब तक प्रेसिडेंट को एक रिटन एडवाइस नहीं मिलेगी, रिटन रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी कैबिनेट की तरफ से, तब तक प्रेसिडेंट इमरजेंसी को डिक्लेयर नहीं कर सकता है। और एक बात कही गई है यहाँ पे, वो ये कि इससे पहले 38th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये जो नेशनल इमरजेंसी की डिक्लेरेशन है, प्रोक्लेमेशन है, इसको इम्यून रखा गया था फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। लेकिन अब क्या कहा गया? अब ये कहा गया नाउ इट्स नॉट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। ओ मिनर्वा मिलर्स केस में भी कहा गया, 1980 में एक केस आया था मिनर्वा मिलर्स केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि नेशनल इमरजेंसी को चैलेंज किया जा सकता है ना, इन द कोर्ट ऑफ लॉ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, यहाँ पे बेटा ऑन है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मैलिफाइड और दैट डिक्लेरेशन वाज बेस्ड ऑन ओनली एक्सट्रेनियस इरेलेवेंट फैक्टर्स और एब्सर्ड और परवर्स। यानी इन सिंपल टर्म्स में
अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नेशनल इमरजेंसी को लागू किया जाएगा, अगर नेशनल इमरजेंसी की डिक्लेरेशन हुई है ऑन द बेसिस ऑफ एब्सर्ड, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ मैलिफाइड, तो उस वक्त नेशनल इमरजेंसी को चैलेंज भी किया जा सकता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, कल आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।